Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in this lecture of consumption function. In the last lecture, we discussed about what is consumption and what is function, and after that we combine these two words to frame the consumption function. In this, we discussed that the consumption function shows a functional relationship between the level of consumption and the level of income, in which the consumption is a dependent variable and income is an independent variable. When there is a certain change in income, there is definitely a certain change in consumption, and the relation between the income and consumption is positive. It means when there is an increase in income, there is an increase in consumption. When there is a decrease in income, there is a decrease in consumption. So consumption function shows a functional relationship between the level of consumption, which is a dependent variable, and the level of income, which is a independent variable. And the first change will be produced in income. After that, there will be a change in the level of consumption. But there is one punch point in this context, and what is that punch point? Let's discuss in today's lecture. So we basically discuss consumption function. So consumption function जो है वो उसको हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया. We said that the consumption C is a function of Y. But one thing should be kept in mind in this regard, that there is a positive relation between consumption and income, but that positive relation is not proportional. It means कि ये नहीं है कि if there is a 10% increase in income, there is a 10% increase in consumption as well. Or if your income doubles, then your consumption also doubles, and if your income remains half, then your consumption remains half. No, this is not the case. There is a positive relation between income and consumption, but the relation between the two is not proportional, rather it is non-proportional. Non-proportional means what? कि अगर इसमें क्या होगा, if there is a change in income, there is a change in consumption, but not at the same amount as the income changes. When there is an increase in income, there is an increase in consumption, but less than increase in income. When there is a decrease in income, there is a decrease in consumption, but not in the same proportion as the income decreases, but less than decrease in income. It means what? It means that कि अगर आपकी सपोज करो कि आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आप पहले से डबल कंज्यूम करेंगे. अगर सपोज करो कि मैं कहूं कि मैं इस टाइम पे मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, तो मैं इस टी शर्ट की कंजम्पशन कर रहा हूं. अगर मेरी इनकम डबल हो जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 टी शर्ट पहननी शुरू कर दूंगा, या मैं 2 पैंट पहननी शुरू कर दूंगा, या मैं 2 बेल्ट लगानी शुरू कर दूंगा, या मैं 2 स्पेक्स पहननी शुरू कर दूंगा, या मैं 2 मार्कर से लिखना शुरू कर दूंगा, या अगर मैं ब्रेकफास्ट के अंदर अगर मैं 2 चपातियां खाता हूं तो मैं 4 चपातियां खाना शुरू कर दूंगा. ऐसे थोड़ी होता है. ठीक, तो क्या होगा? अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मेरी कंजम्पशन डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा चीजें अपने घर पे लेके आऊंगा. पर ये नहीं होगा कि अगर मेरी इनकम डबल हो जाती है तो मेरी कंजम्पशन भी डबल हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा. अगर हमारी इनकम में इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन में उससे कम इंक्रीज होता है, तो बाकी हम क्या करते हैं? बाकी हम सेविंग्स कर लेते हैं उसकी. सो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम, देयर इज अ इंक्रीज इन कंजम्पशन, बट नॉट इन द सेम proportion as the income increases. Number 2, अगर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी कंजम्पशन भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर डिक्रीज होगी. सपोज आपकी इनकम हाफ रहेगी, इसका मतलब क्या होगा कि आप अपनी कंजम्पशन भी हाफ कर देंगे? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमें कंजम्पशन करनी ही होती है. तो अगर हमारी इनकम कम भी हो जाएगी तो एक कोट आता है, वो कहता है कंजम्पशन हैबिट्स आर इरिवर्सिबल इन द शॉर्ट रन एंड लेस रिवर्सिबल आर इन द लॉन्ग रन. मतलब जो हमारी कंजम्पशन हैबिट्स हैं वो क्या है? वो शॉर्ट रन के अंदर तो इरिवर्सिबल है,
हम उसको चेंज नहीं कर पाते। मतलब जिन चीजों की हमें आदत पड़ चुकी है ना, हम उनको छोड़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि किसी पर्सन की इनकम जो है वो कम रहेगी, तो मैं आज के टाइम में उसको बोलूं कि भाई साहब आप मोबाइल मत यूज कीजिए, तो वो बिना मोबाइल के तो नहीं रह पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो कहेगा चलो ठीक है, मैं इसमें डेटा वगैरह नहीं यूज करूंगा, मैं फेसबुक व्हाट्सएप ये नहीं चलाऊंगा, पर सुनने के लिए तो फोन चाहिए ना। तो बिना मोबाइल के तो आजकल काम नहीं चलता किसी का भी। तो मैं कहता बिना फोन सुने तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो काम ही फोन पे है, और वो हम सबका है। तो क्या होगा, अब वो क्या करेगा, अगर उसकी इनकम कम रह जाएगी और हाफ हो जाएगी, ये नहीं होगा कि वो मोबाइल यूज करना ही बंद कर देगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसमें डेटा पैक जो है वो नहीं डलवाएगा। ठीक है, अगर मान लो उसकी इनकम बहुत कम रह जाती है, अगर मान लो उसके पास व्हीकल है, तो ये थोड़ी उसको ताला मार के रख देगा, वो कहेगा चल थोड़ा कम यूज कर लेंगे। अगर उसकी इनकम कम हो जाती है, अब ये थोड़ी होगा कि घर पे लाइट्स ही बंद कर देगा, वो कहेगा चलो थोड़ा कम यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी, पर उस प्रोपोर्शन के अंदर कम नहीं होगी जिस प्रोपोर्शन के अंदर इनकम कम हुई थी, बल्कि उससे लेस प्रोपोर्शन के अंदर जो है कम होगी। तो रिजल्ट क्या निकला कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट वो पॉजिटिव रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, मींस दोनों का प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं रहता। दिस फर्स्ट पंच पॉइंट। नाउ कम्स टू द सेकंड पंच पॉइंट। अब क्या है, हमने कहा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या करता है, कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां पे लिख दिया इनकम, तो ये मैंने अपना फर्स्ट कॉलम बना लिया। अब सेकंड कॉलम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बना लिया कंजम्पशन। ठीक है, और मैंने ये बोल दिया कि कंजम्पशन जो है वो इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम होगी तो कंजम्पशन होगी। ऐसे ही होता है। अगर सपोज करो, अगर इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर किसी की इनकम जीरो है, तो कंजम्पशन कितनी। नाउ डोंट से दैट कंजम्पशन इज जीरो, नो, क्योंकि अगर आपने यहां पे मुझे ये कहा कि किसी पर्सन की इनकम जो है वो जीरो होने पर उसकी कंजम्पशन जीरो होती है ना, तो मैं आप पे बात ले आऊंगा, क्योंकि आप सभी की इनकम इस टाइम पे जीरो है। अब आप सोचो, आप तो स्टूडेंट हो, आप तो पढ़ रहे हो ना, तो आपकी कहां से इनकम हुई, बट स्टिल यू आर कंज्यूमिंग। अगर इस टाइम की बात करूं तो आप मेरा लेक्चर जो है वो एक टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे या मोबाइल पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसका मतलब मोबाइल को कंज्यूम कर रहे हैं या टीवी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने डेटा पैक डलवाया होगा, आप उससे इसको कंज्यूम कर रहे हैं। आपने कपड़े पहने हुए हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने खाना खाया सुबह, आपने उसको कंज्यूम किया है। ठीक है, आप किसी रूम में बैठे हैं, अपना एसी चल रहा होगा या हीटर चल रहा होगा, आपने उस चीज को कंज्यूम किया है, तो आप तो कंजम्पशन तो आप भी कर रहे हो, पर आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम तो जीरो है। इसका मतलब ये सेकंड पंच पॉइंट है कि अगर किसी की इनकम जीरो होती है तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन जीरो नहीं होती। ओके, सो अब क्या होगा, अगर मैं कहूं कि इनकम लेवल जीरो है तो उसके ऊपर भी 10 जो है वो हमारा कंजम्पशन का लेवल है। मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड आवर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कह सकते हैं, आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड योर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज इट्स योर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कंजम्पशन है जो आपको करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू लिव। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मर जाएंगे। देखो क्या होता है, हर पर्सन की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। ठीक है, इन विच वी इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ। देयर आर 5 बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन: फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ। देयर आर 5 बेसिक नीड्स, और ये 5 बेसिक नीड्स हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, हम मर जाएंगे, वी विल डाई। सो ये जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ये क्या है, ये उन लोगों की होती है कि अगर इन केस इनकम जीरो भी हो जाएगी तो ये नहीं होगा कि वो बिना फूड के रह लेगा, या बिना क्लोथ के रह लेगा, या बिना शेल्टर के रह लेगा, या बिना हेल्थ फैसिलिटीज के रह लेगा। अब ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये समझ लो कि ये आप लोग हैं, आप लोगों की इनकम जो है वो क्या है, वो जीरो है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, सो इट्स योर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन और योर ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब ये इसको पूरा करना है तो क्या चाहिए, देखो अब इनकम तो आपकी जीरो है, अब अपने कंजम्पशन तो आपने करनी है, तो आप क्या करेंगे, वी हैव 3 ऑप्शंस: बेग, बोरो और स्टील। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेगिंग,
इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स कि हमें पॉकेट मनी दे दीजिए, हमें ये वाला चीज लेनी है, हमें ये वाली चीज लेनी है. सो यू आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. सो बेग, बोरो और स्टील, तीन ही ऑप्शंस हैं आपके पास. सो यू हैव टू चूज वन, क्योंकि आपने ये जो है इसको तो कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो इसके बिना तो आप नहीं रह सकते. अब सोचो, अब मैंने कहा कि आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, पर आपकी इनकम तो जीरो है, पर स्टिल आप कंजम्पशन कर रहे हो. इसका मतलब कि जो भी कंजम्पशन है वो इनकम पे डिपेंड करती तो है, बट आफ्टर दैट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मतलब इस कंजम्पशन लेवल के बाद. मतलब अगर मुझे इस कंजम्पशन लेवल को या इस कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि सी इज योर टोटल कंजम्पशन. आप कितनी करोगे? वो है आपका C0. C0 क्या है? दिस इज योर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन प्लस BY. ये देखो, अब आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना हो गया? 10. ठीक, अगर सोचो कि ये B क्या है? ये B होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये क्या है? हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इस चीज को. ये क्या है? आप अपनी इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं. लेट इट बी कि जितनी आपकी इनकम होती है आप उसका 80% कंज्यूम करते हैं. 80% कितना हो गया? 0.80. आपकी इनकम कितनी है? 0. तो अगर आपकी इनकम 0 है तो 0.80 इंटू 0 तो क्या हो गया? 0. तो आपका कितना आ गया? कंजम्पशन कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई. यानी अगर आपकी इनकम यहां पे मैं 0 भी पुट कर दूं तो भी आपकी कंजम्पशन जो है वो 0 नहीं होगी. आपको एक मिनिमम लेवल जो है वो आपने कंज्यूम करना ही करना है, उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन या ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है ये कहां से आएगी? अब आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, आपके पेरेंट्स से आएंगे. मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप जो हैं वो अपनी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के लिए यू आर डिपेंडिंग अपॉन योर पेरेंट्स. ठीक है, सो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना इस बात के लिए. सो क्या होगा कि हर एक पर्सन का जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा वो सेम नहीं होगा. किसी का मिनिमम लेवल क्या हो सकता है? मान लो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोगों का मिनिमम लेवल क्या होगा? मैं कहूंगा यार देखो यार 2 चपातियां खानी है मुझे, ठीक है, सिंपल दाल भी मिल जाएगी तो मैं तो खा लूंगा. तो मेरा मिनिमम लेवल ये है कि अगर एक जो है कटोरी दाल मिल जाए और 2 चपातियां मिल जाए, मोर देन सफिशिएंट है. तो कहता है ये भी तेरा तो 30 रुपीज में काम चल जाएगा पर मील. तो दिन में 3 टाइम का मील है तो 90 रुपी इज माय मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आप कहेंगे ना जी ना 2 चपातियां और एक दाल से क्या होता है? हम तो जब तक एक दिन के अंदर जो है वो मतलब डोमिनोज का पिज्जा ना खाएं या हम कहीं से मैकडॉनल्ड का बर्गर ना खाएं तो हमारा तो काम नहीं चलता. ठीक है, तो हमें तो वो भी चाहिए. तो आपका मिनिमम लेवल जो है वो अगर आप डोमिनोज का पिज्जा या मैकडॉनल्ड का बर्गर खाने चाहते हैं सो वो क्या हो जाएगा? वो तो मतलब आप 200-300 पे लगा लीजिए. मतलब मेरा मिनिमम लेवल जो है वो कितना हो सकता है? वो 90 रुपीज हो सकता है. आपका हो सकता है 200 हो. क्यों हो सकता है? आपके पापा के पास या मम्मा के पास पैसे हो जो आपको दे दें. मतलब जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है किसी भी पर्सन का वो डिपेंड करता है उस सोर्स के ऊपर जहां से उसको इस मिनिमम लेवल के लिए पैसे मिल रहे हैं. ओके, अगर मेरा सोर्स जो है उसके पास पैसे कम है, मान लो मेरे पापा के पास पैसे कम है, मेरी इनकम 0 हो गई, मेरे पापा के पास पैसे कम है, तो मेरा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो भी कम रहेगा. आप लोग हैं, आपकी इनकम 0 है, आपके पापा की इनकम बहुत है, तो आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो ज्यादा रहेगा. तो क्या होगा? अगर हम कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं तो जैसे जैसे आपके पेरेंट्स जो है वो रिच होते जाएंगे आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जाएगा. मतलब आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सोर्स जिसने आपको इस मिनिमम लेवल के लिए इनकम देनी है उसके पास पैसे कितने हैं, उसके ऊपर आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा. दूसरी बात, अगर हम इसी चीज पे आ जाएं, हम अगर ये सोचें कि देखो अगर हमारी जितनी इनकम होती है, ठीक है, अब ये 10 आपका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब सोचो हमारी जितनी इनकम होती है, मैंने उसको y लिख दिया. हम क्या करते हैं? हम अपनी इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला क्या होता है? या तो हम क्या करेंगे? उसको कंज्यूम कर लेंगे, फिर क्या करते हैं? उसको हम सेव कर लेते हैं. मतलब जो हमारी इनकम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज कंजम्पशन एंड अदर वन इज सेविंग. अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी जो है वो 40,000 है तो मेरी इनकम कितनी हो गई?
40,000, अब मैं 40,000 के 40,000 थोड़ी कंज्यूम करूंगा। मुझे पता है अगर कल को जरूरत पड़ गई तो मुझे क्या करना पड़ सकता है, मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैंने 40,000 जो है वो अभी के अभी सारे खर्च कर दिए, तो अगर कल को मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं कहां से लेके आऊंगा? सो मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड माय इनकम इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इज माय कंजम्पशन, लेट इट बी इट इज 30,000 and 10,000 will be my savings, so that is equal to my total income which is 40,000. Means our consumption plus saving is equal to our income. अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप खुद चेक कीजिए कि यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो कितनी है, इट्स जीरो। इनकम तो आपकी जीरो है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग 10, इसका मतलब आपकी सेविंग्स कितनी हुई, योर सेविंग इज इक्वल टू, अब सेविंग करने तो उसको इधर लेके जाओ, तो सेविंग किसके बराबर हो गई, सेविंग इज इक्वल टू -10। और ये सेविंग किसकी, ये आपके पेरेंट्स की सेविंग है, क्योंकि आपकी तो इनकम ही नहीं है। तो इसका मतलब आप जितना मिनिमम लेवल कंज्यूम करेंगे उतनी ही आपके पेरेंट्स की जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएंगी। सो अगर शुरुआत के अंदर किसी भी पर्सन का इनकम लेवल जो है वो जीरो है और उसके ऊपर वो कंज्यूम समथिंग कंज्यूम कर रहा है, इट मींस एट दैट पॉइंट सेविंग विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉलम और बना लें सेविंग का, तो सेविंग कितनी हो जाएंगी, -10। अब क्या हुआ, अब आपने थोड़ी बहुत इनकम जो है वो अर्न करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि अभी आप थोड़ी बहुत इनकम अर्न कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप सारा खर्चा अपना खुद ही उठाना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा सा अपना जो कंजम्पशन का लेवल है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे देखो जी अब मैंने थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत मैं कमाता हूं, थोड़ा बहुत आप मेरी हेल्प कीजिए। आप बोल रहे हैं टू योर पेरेंट्स कि समथिंग आई कैन अर्न एंड समथिंग यू विल हेल्प मी। सो अब आपने क्या किया, अब आपने मान लो कहीं जॉब पे जाना है, तब आप मिनिमम लेवल तो नहीं कंज्यूम कर सकते, देन यू हैव टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड, एंड इफ यू हैव टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड देन आप क्या करेंगे, आप अपने कंजम्पशन जो है उसको बढ़ा के 15 कर दिया। अब सोचो इनकम कितनी 10, कंजम्पशन कितनी 15, तो आपकी इनकम बढ़ी 10, तो आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ी 5। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था when there is an increase in income there is an increase in consumption and there is a positive relation between the two, but ये नहीं होगा कि दोनों जो है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे, ये 10 इंक्रीज हुआ है तो ये 5 इंक्रीज हुआ है। अब आपकी इनकम जो है वो यहाँ पे कितनी आ गई 10, and now your consumption is कितनी हो गई 15 and your saving कितनी हो गई फिर -5, तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो जाएगी -5, ठीक। अब आपकी इनकम हो गई 20, okay, now your consumption is 20, now your income and consumption both are same, मतलब आप जितना इनकम अर्न कर रहे हैं आप उतना ही जो है वो कंज्यूम भी कर रहे हैं, मतलब जितना कमाया उतना खाया, मतलब आपकी सेविंग कितनी हो गई 0, ओके। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। सो कई बार हमें एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर सेविंग्स आर जीरो। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट at which income and consumption are equal and at that level savings are zero, okay, so this is your break even point, मतलब जहां पे आपकी सेविंग जो है वो क्या होंगी जीरो हो जाएंगी। उसके बाद आपकी इनकम हो गई लेट इट बी 30, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने अपनी कंजम्पशन की 25, नाउ योर इनकम इज 30, योर कंजम्पशन इज 25, नाउ you start saving something, so your savings will be 5. If your income is 40, your consumption is 30, now your savings are 10, so this is your saving level. If your income is 50, your consumption is 35, then your savings are 15. Next, if your income is 60, your savings are your consumption level is 40 and your savings are 20. Okay, so क्या होगा अगर हम स्टार्टिंग में बात करें यहां तक, मैं इस पूरे टेबल के जो है वो 3 पार्ट्स करने वाला हूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ईदर योर इनकम विल बी 0 और योर इनकम विल बी लेस देन योर कंजम्पशन, ओके। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स,
in the initial stages, either your income will be zero or your income will be less than your consumption. In that case, your savings are negative. Okay? After that, this is the second part. Second part में क्या होगा? This is the second in which your income and your consumption are same, and at that point your savings will be zero. After that, your income is greater than your consumption. Look at this. Income is 30, consumption is 25. Income is 40, consumption 30. Income 50, consumption 35. Income 60, consumption 40. So your income level is more than your consumption level, and in that case your savings are positive. Okay, so this is the table which shows a relationship between income, consumption and saving, and we have three parts of this table. In the first part, savings are negative. In the second part, savings are zero, and in the third part, savings are positive. Okay, we can also show this type of tendency with the help of a diagram. हम वो diagram कैसे बना सकते हैं? तो पहले हम ये table जो है वो फिर से बनाते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको हम एक डायग्राम से जो है वो शो करेंगे. So here it is your income level. First of all, this is your income, and second column is your consumption. Okay, and third your savings. Okay, so we show these three type of tendency in a single diagram. So initially your income is 0, consumption is 10, savings are minus 10. Income is 10, consumption is 15, savings are minus 5. Income 20, consumption 20, savings 0. Income 30, consumption 25, savings are 5. 40, 30, 10, 50, 35, 15, 60, 40 and 20. Okay, so we show this with the help of this diagram. In this diagram we have taken x-axis and y-axis. On the x-axis we will take the level of income. On y-axis we will take two things. First we will take consumption, and second we will take savings. Okay, so this is your y-axis. So your income is 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Okay, so अगर हम income देखें तो हमने क्या किया है, income को हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 हर बार हमने सेम बढ़ाया. तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो है उसके लेवल में जो है वो इंक्रीज कर देते हैं 40, 50 एंड 60. अब अगर मुझे इनकम कर्व बनानी है तो कैसे बनेगी? इनकम कर्व में हम क्या करेंगे, अगर सोचिए इधर से 10, इधर से 10, इधर से 20, इधर से 20, इधर से 30, इधर से 30 ले लूं तो क्या होगा, मेरी एक कर्व बनेगी जिसको मैं ऐसे बनाने लगा हूं. इट विल बी अ 45 डिग्री कर्व. क्यों 45 डिग्री? क्योंकि हम दोनों साइड में सेम स्केल ले रहे हैं. ठीक है, सो इट विल बी अ 45 डिग्री कर्व जो which shows that your income is increasing at a constant rate. And what is the constant rate? Is always increase the amount of 10. Okay, so this will be your income curve. Starts from 0. Your income is 0 in the initial stages. So this Y, this is your income curve. Okay, now it comes to the consumption curve. Now show this. When your income is 0, your consumption is 10. No, so sorry, we have forget to take the savings as minus 5 and minus 10. Now it's okay. Okay, no, we have taken the scale of 10, so it is minus 10. Okay, so first of all, your income is 0 and your consumption is 10. So your consumption is 10 when your income is 0. Then income 10, consumption 15. Income is 10 but the consumption is 15. So here is 15. Income 20, consumption 20. So this will be the point. Income 30, consumption 25. Income 30, consumption 25. Income 40, consumption 30. Income 40, consumption 30. Income 50, consumption 35. Income 50, consumption 35. Income 60, consumption 40. Income 60
and your consumption is 40. So this red line is your CC. It's your consumption curve. Okay? तो आप ध्यान से अगर देखें तो क्या चल रहा है, शुरू में अगर आप देखिए तो जो ब्लैक लाइन है दैट शोज योर इनकम कर्व. इनकम जो है वो नीचे यहाँ पे और कंजम्पशन जो है वो ऊपर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपकी इनकम जो है वो कम है और आपकी कंजम्पशन जो है वो क्या है वो ज्यादा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बाद में आए तो भी इनकम ज्यादा है, तो भी आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है. अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आए, इफ आई कोड दिस पॉइंट एज ई, सो ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी इनकम और कंजम्पशन जो है वो क्या है, इक्वल. तो देन दिस पॉइंट विल बी द आवर is called a break even point. So this E is a break even point. At this point income and consumption are equal. After that अगर आप चेक करें तो आपकी जो इनकम की कर्व है वो ऊपर चली गई, ब्लैक लाइन इज अबव टू द रेड लाइन. सो रेड लाइन इज योर कंजम्पशन कर्व. कंजम्पशन जो है वो क्या है, वो नीचे है और इनकम जो है वो क्या है, वो ऊपर है. क्लियर हो गया. सो अब अगर हम इसी डायग्राम के अंदर जो है एक सेविंग की कर्व बनाए तो वो कैसे बनेगी, लेट्स सी. Income is 0, savings are minus 10. So it is minus 10. Income 10, consumption, so savings are minus 5. So this is the point of minus 5. Income 20, savings are 0. So this will be the point, saving is 0. Income 30, saving 5. So savings are 5. Income 40, savings are 10. So savings are 10. Income 50, savings are 15. So savings are 15. Income 60, savings are 20. So savings are 20. So this blue line shows SS. It's your saving curve. Okay. So the saving, अब check करो इसमें क्या हो रहा है कि saving is equal to what? Saving is the difference between income and consumption. This is your income curve, black. And this is red is your consumption curve. The difference between the two is a saving curve. सोच के देखिए, अब यहाँ पे जो गैप है, this is your income and this is your consumption. Sir, difference between consumption and income is equal to saving. तो ये वाला difference जो है और ये वाला difference जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर वो सेम ना हुआ तो क्या हो जाएगा, आपकी डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगी. जहां पर जाके इनकम और कंजम्पशन यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों सेम आए थे, उसके बिल्कुल नीचे क्या होना चाहिए, सेविंग्स जो है वो जीरो होनी चाहिए. अब देखो यहाँ पे ये आपका इनकम है, ये आपका कंजम्पशन है. इनकम ऊपर है, कंजम्पशन नीचे. इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या है, सेविंग. तो जितना ये गैप होना चाहिए यहाँ पे उतना ही गैप जो है वो यहाँ पे होना चाहिए. अब चेक करो, हमने 30 पे सेविंग्स कितनी शो करी थी, 5. सो दिस इज 5. सो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए. अगर ये स्केल मैच ना किया तो आपकी डायग्राम जो है वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी. सो वी कैन शो दिस कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एज वेल एज अ डायग्राम. बट व्हाइल मेकिंग अ डायग्राम प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्केल कि आपका कंजम्पशन का, इनकम का और सेविंग का जो स्केल है अगर वो मैच करता होगा, ओनली देन योर डायग्राम विल बी ओके, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. तो स्केल जो है उसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा. ना अब जो हमने ये कंजम्पशन फंक्शन बनाया, अब उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं फिर से. ठीक है, तो हमने कंजम्पशन फंक्शन के अंदर क्या किया, एक जो है वो टेबल फ्रेम किया. अब उस टेबल के अंदर ना हुआ क्या, हमने उस टेबल के अंदर हमने दो चीजें ली. तो कंजम्पशन फंक्शन है, तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे सेविंग नहीं लेने वाला हूँ. ओके, सो हमने सिर्फ दो कॉलम लेने हैं यहाँ पे. एक हमने लेना है इनकम का और एक हमने लेना है यहाँ पे कंजम्पशन का. ओके, सो वन इज इनकम एंड वन इज कंजम्पशन. सो देयर विल बी ओनली टू कॉलम्स. कंजम्पशन फंक्शन, सो कंजम्पशन फंक्शन है तो कंजम्पशन है तो कंजम्पशन तो होगा ही. सो कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का, तो सेकंड कॉलम विल बी ऑफ इनकम. सो देयर आर टू कॉलम, इनकम एंड कंजम्पशन. सो अब क्या है, सपोज your income is 100 rupee, okay, and that 100 rupee your consumption is 80. Okay, if your income is 200, so at this level your consumption is suppose 150. Your income is 300, at this level your consumption is suppose it is 210. Okay, so now look at this table and explain this table. What is this?
It shows various level of consumption, 80, 150, 200, corresponding to different level of income, which is 100, 200 and 300. So a table, अब क्या हो सकता है, अब ये जो टेबल है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो टेबल हमने बनाया वो हमने बनाया इकोनॉमी लेवल पे। सो हम ये मान लेते हैं कि जो इनकम है वो क्या है, वो इन करोड़ रुपीस है, और जो कंजम्पशन है वो भी इन करोड़ रुपीस है। भाई आपकी इनकम जो है वो 100 करोड़ थी और आपकी कंजम्पशन जो है वो 80 करोड़ थी। इनकम 200 करोड़, कंजम्पशन 150 करोड़, इनकम 300 करोड़ एंड कंजम्पशन इज 210 करोड़। ओके, सो दिस इज द टेबल ऑफ द होल इकोनॉमी बिकॉज वी आर डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, डन। नंबर 2, अब जो बात मैं बोलने वाला हूं वो ये है कि क्या ये टेबल जो बनेगा 100, 80, 200, 150, 300, 210, क्या ये सारी इकोनॉमीज के लिए सेम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर उनका लेवल ये भी होगा, ठीक है, तो वो डेवलप्ड है। जब डेवलप्ड होते हैं तो क्या होता है, हमारी मोस्ट ऑफ द नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कंजम्पशन कम करेंगे। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या होगा, अगर उनकी इनकम जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती है तो उस केस में क्या होगा, उस इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों ज्यादा इंक्रीज होगा? क्योंकि अभी वो अंडर डेवलप्ड हैं या वो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर उनकी इनकम के अंदर कुछ चेंज आता है तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सो अब क्या होगा कि अब ये जो टेबल बनेगा वो हर इकोनॉमी के लिए डिफरेंट बनेगा। मतलब जो लोगों की कंजम्पशन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगी इन एवरी कंट्री। कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पे लोग ज्यादा कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे, कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पे लोग कम कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे। सो देयर प्रेफरेंस टुवर्ड्स कंजम्पशन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ economies like the developed nations or the developing nations or the underdeveloped nations. So we can calculate one more thing from this, and that is called propensity to consume. Now what is propensity to consume? Consume, हम consume का meaning already clear कर चुके हैं कि consume means what? Consume means to use the things. Now what is propensity? Propensity means a tendency. Okay, propensity means a tendency. Tendency means our preferences towards consumption. So our preferences what? अगर मैं बोलूं कि ये जो मैंने टेबल बनाया, this is for the Indian economy. So what I am dealing with, मैं बोल रहा हूं कि इंडिया के अंदर अगर कंजम्पशन जो है वो 80 है, इसका मतलब इनकम कितनी है, 100 है। कि अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम 100 करोड़ की है, देन द पीपल विल प्रेफर टू कंज्यूम 80 करोड़। And if the level of income is 200 crore, then the people will prefer to consume 150 crore out of that, and the 50 crore will be the savings. क्यों? चेक करो, इनकम 200 है, 150 करोड़ की बीच में कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब 50 करोड़ की क्या होगी, सेविंग होगी। अगर इनकम 100 है, उसके ऊपर 80 करोड़ की कंजम्पशन हो रही है, तो सेविंग कितनी होगी, 20 करोड़ की। और अगर इनकम 300 है, उसके ऊपर 210 करोड़ की कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब सेविंग कितनी होगी, 90 करोड़ की। तो अब ये क्या है, ये हमारे लोगों की टेंडेंसी को शो कर रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इनकम चेंज हो रही है हर बार कितनी, देखो पहले 100 थी, फिर 100 चेंज हुई, फिर 100 चेंज हुई, ठीक है, इनकम हर बार 100 चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, 80 से 150, 70 करोड़, अगली बार कितनी हुई, 150 to 210, यानी कि 60 करोड़। हर बार हम अपनी कंजम्पशन जो है वो कम चेंज कर रहे हैं, मतलब वी प्रेफर टू सेव मोर रादर टू कंज्यूम मोर। सो दिस इज आवर टेंडेंसी। अब ये क्या हो सकता है, अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वहां पे लोग सेविंग करना प्रेफर नहीं करते। व्हाई? हम लोग सेविंग क्यों करते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सेविंग क्यों करता हूं? मैं कहूं कि मैंने एनएससी परचेज किए हुए हैं या मैंने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो एट प्रेजेंट जो मैं इनकम अर्न करता हूं उसमें से मैंने जितनी सेविंग्स करनी वो मेरी, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी जैसी कंट्री की, ये हमारे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो बहुत कम है।
गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अस दैट मच अमाउंट एज अ सोशल सिक्योरिटी विच इज रिक्वायर्ड. हम कहते हैं ना कि वो लोग ओल्ड एज पेंशन देते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 500 पर मंथ. अब सोचो 500 पर मंथ में एक बंदे का क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं. सो 500 से वेरी लीस्ट अमाउंट, जिससे हमारी बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती. तो हम ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, देन वी हैव टू डू समथिंग ऑन आवर बिहाफ. तो हम सेविंग करना प्रेफर करते हैं. डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट इज देयर टू सपोर्ट यू. तो उनको पता है अगर हम कल को ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो अगर हमारे पास इनकम नहीं भी होगी, देन द गवर्नमेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस. सो हमें सेविंग करने की क्या जरूरत है. सो उनका सीधा फिलॉसफी है उनकी कि है ना, पंजाबी में कहावत आती है, वो कहते हैं खादा पीता लायदा बाकी अहमद शायदा. खादा पीता लायदा बाकी अहमद शायदा. ये कहावत कैसे बनी कि एक टाइम पे क्या होता था, अहमद शाह हो था ना, बाकी अहमद शाहिदा. मतलब किसी टाइम पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो क्या करता था, इंडिया के ऊपर अटैक करता था. और जितने भी अटैकर्स आए हैं, उन्होंने इंट्रूडर्स जितने भी आए वो सारे थ्रू पंजाब जो है वो आए हैं, एक्सेप्ट फॉर द ब्रिटिशर्स. तो क्या करते थे पंजाबीज जो है किसी टाइम पे बड़े कंजूस हुआ करते थे, बड़े पैसे जोड़ जोड़ के रखते थे. तो क्या हुआ, पैसे जोड़ जोड़ के रखते थे तो क्या होता था, अहमद शाह अब्दाली अटैक करता था, तो जितने पैसे होते थे उनको लूट के ले जाता था. तो उन्होंने सोचा यार मतलब पैसे सेविंग करने क्या फायदा है भी, जितना खा पी लिया वो तो अपना पक्का, जो बाकी बच गया वो तो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा. सो उन्होंने क्या किया, वो कहता है ना पंजाबी बड़े खुले दिल वाले हैं, बहुत खर्चा करते हैं, ये उसके बाद शुरू हुआ है. जब अहमद शाह अब्दाली ने हमें लूटना शुरू किया, तब भी वो कहते हैं खादा पीता लायदा, मतलब जो खा पी लिया वो अपना पक्का, बाकी अहमद शायदा, बाकी जो बच गया वो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द टेंडेंसी. सो क्या होगा कि प्रोपेंसिटी मीन्स अ टेंडेंसी टू कंज्यूम, आ प्रेफरेंस टू कंज्यूम, कि हम कितना कंजम्पशन करना जो है वो प्रेफर करते हैं. सो आर प्रेफरेंसेस विल बी शोन इन दिस टेबल. कि अब क्या हो रहा है कि अगर हमारी इनकम जो है वो 100 करोड़ है, देन वी प्रेफर टू कंज्यूम 80 करोड़. इफ योर इनकम is 200 crore, then we will prefer to consume 150 crore. And if our consumption is if our income is 300 crore, then we prefer to consume 210 crore. So this is our propensity to consume. So propensity to consume कैसे शो होगी, इट विल बी शोन थ्रू अ टेबल. उस टेबल के अंदर क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड कॉरस्पॉन्डिंगली देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंजम्पशन. तो उससे पता लगेगा कि हमारी कंजम्पशन की टेंडेंसी, हमारी कंजम्पशन की जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है. तो कंजम्पशन फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट अ टेंडेंसी ऑफ प्रोपेंसिटी और प्रेफरेंसेस टू कंज्यूम. नाउ अब हम बात करेंगे कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या जो टेंडेंसी टू कंज्यूम है, दैट विल बी ऑफ टू टाइप्स. मतलब ये जो आपके सामने टेबल नजर आ रहा है, हम इससे दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसी दो चीजों के बेसिस पे आवर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी ऑफ टू टाइप्स, बट दैट विल बी our next lecture. Okay, so हम उसको अपने next lecture के अंदर देखेंगे. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.